بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا مصطفى الجد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قد تكونوا ذوي القوة والمؤمنين ورحمة الإسلام إشارة الرجال لوگ نماز معاف کرتے لوگ والدین کو گناہوں کو معاف کرتے زندہ ممین اپنار کو گناہوں کو معاف کرتے اس دن جو مسئلہ پر تمام کرتے ہوگا. اس کے آگے کو بیان شروع کیا جائے. میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو بیان کرنا مناسب ہے. میری خواہش یہ ہے کہ اگر مجھے مجلس کے لیے اگر میں کروا دے میرا نام سید حسن علی کہہ کے یا ذاتی کہہ کے یا مولانا غلام ماتا کہہ کے یا قاضی حسن علی کہہ کے بھی بلا دے اس کا احسان ہے. مولانا تو وہ ہوتے ہیں جو واقعی بھی مولانا ہوتے ہیں اور لہٰذا جس کو شوق ہے بہت زیادہ اپنے کو مولانا کرانے کا وہ کہلائے. اگر مولا کے محتاج ہیں مولانا کا مطلب کا کام کا لیڈر اور یہ رکھا مولا علی کا تھا اور جس کو مل رہا ہے ایسے کرنے کی سوال اسی لیے عرض کیا کہ مولا کو بتائیے مولا دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. امام نے ارشاد فرمایا بہت سی باتیں ان میں سے یہ کہا کہ اگر دعا مانگنا ہے تو پہلے دوسروں کے لیے مانگو پھر اپنے لیے. تو کہتا ہے مولا یہاں تو پہلے اپنا ذکر ہوا پھر والدین کا پھر جملہ مومنات کا. تو آپ نے کہا کہ جہاں پہ گناہ کی بات آ جائے تو پہلے اپنے گناہ معاف کروا لو تاکہ تمہاری زبان تمہارے گناہ معاف ہو جائے اور تمہاری زبان پاک ہو جائے تو اپنے والدین کے بارے میں بیان ہوتا ہے. کچھ مقامات ایسے کچھ وقت ایسے ہیں کہ جب بارگاہ الہی میں انسان دعا کرتا ہے تو جلدی قبول ہوتی ہے. جب آسمان سے بارش ہوتی ہے جب خدا کی رحمت میں بارش ہوتی ہے اس وقت اگر کوئی دعا مانگے تو جلدی قبول ہوتی ہے. دوسرا مقام بتایا گیا کہ جب اذان ہوتی ہے جب اذان ہوئے تو انسان سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ پروردگار سے اپنی حاجت طلب رہے تاکہ خدا اس کی حاجت سنے اور اس کی مراد پوری ہو. اور رسول خدا نے بھی اور حدیثوں میں لکھا ہے کہ اذان کے وقت بات نہیں کرنا چاہیے. اذان ہو تو اس کو دہرائے, اذان ہو تو سنے, اذان کے وقت بات نہیں کرنا چاہیے. اس میں بیان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اذان کے وقت باتیں کرتا رہتا ہے تو اس کا دم مشکل سے نکلتا ہے. اور جب کوئی مجاہد میدان میں جا رہا ہے تو بڑا جلدی قبول ہوتی ہے. اگر ابھی تو نام پردے رہتے ہیں جب خدا کا حکم ہوگا تو وہ آئیں گے اور جب اس وقت جہاد ہوئے گی تو جو مجاہد جائیں گے تو پورا ماننے ملے تو قبول ہوگی. مگر تاریخ نے منظر دکھایا کہ مجاہد میدان میں جا رہا ہے اور خود رسول خدا نے اس کے سر پہ امامہ رکھا, سرکار ہمارا دشمن نے دکھایا. جب باتیں یہ کہہ رہا تھا دشمن رسول کوئی ہے تو نہ بھیجے, کوئی ہے تو نہ بھیجے. کیا تمہارے پاس اب حاصل کرنے والے نہیں ہے, کوئی سجا بہادر نہیں ہے. رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو تیار کیا اور سلیمہ میں بٹھایا اور مقتل کے ساتھ جب آپ جا رہے تھے
इमाम अली की पेशानी चूमा और कहा कि अली की एक ज़रबा ज़मीन और आसमान वालों की ताकत से अफजल सवाल। और जब इंसान अगर गुनहगार हो जाता है, खता होती है, तो उसकी दुआ भी कबूल होने में वक्त लगता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग जमा हो गए, एक जगह दुआ कर रहे थे, मगर कुछ न हुआ, बारिश नहीं हुई। लोगों ने जनाब मूसा से अर्ज़ किया, आप वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद आपने हाथों को उठाया, जैसे ही आप दुआ कर रहे थे पैगाम आया, मूसा इसमें से एक गुनाहगार है जिसकी वजह से किसी की दुआ नहीं कबूल हो रही है। जनाब मूसा ने बयान किया, सब ने अपने अपने नफ्स का जायजा लिया। हर इंसान खूब जानता है कितने नेक हैं, जन्नत इंतजार कर रही है, कितने बुरे हैं कि कहीं जहन्नम में न चले जाए। मगर जब उसने ये एहसास किया कि हम खताकार हैं, पाएगा इलाही में दुआ किया, और वह निराश सबसे बड़े हम तेरे गुनहगार हैं, तूने खताओं को माफ कर दे, मगर सब की दुआ सुन ले, वरना क्या होगा। बस खुदा ने दुआ कबूल किया, बादल छाने लगा, पानी की बूंदें आने लगी, लोग हटने लगे। जनाब मूसा ने पुकार होकर खुदा से कहा, और वह निगाह तूने तो कहा एक गुनाहगार है, न कोई मोमिन दाखिल हुआ, न कोई गुनाहगार यहाँ से निकला, आखिर बारिश कैसे हो गई। कहा जो गुनाहगार था हमने उसकी खता को माफ कर दिया। कहा वो था कौन। कहा मूसा, जब वो गुनहगार नहीं था तब तो नाम नहीं बताया, नाम कैसे बता दे। सवाल जब इंसान अपने को गुनाहों से पाक कर लेता है और अहले बैत से मोहब्बत होती है, उनका वसीला रखता है, तब जाके बारगाह इलाही में दुआ कबूल होती है। वही वक्त आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़माने में, बारिश नहीं हो रही थी, सब बहुत परेशान थे। इमाम और लोग मैदान में जमा होकर दुआ मांग रहे हैं, मगर उस मैदान में देखा गया एक खादिम वो सीधा लिबास में आया है, जिसकी शक्ल गुलामों जैसी है, लिबास गुलामों जैसे। तो आया, उसी मजलिस से निकला और निकलते हुए एक थोड़ा सा बुलंदी को ऊपर गया और हाथों को फैलाने लगा। एक शख्स कहता है, मैंने ये सोचा हम सब तो एक जगह, ये अलग जगह क्यों मांग रहा है। बस वो कहता है, मैंने देखा उसके लब हिल रहे थे, मैं पास चला गया, इसकी आवाज सुने कह जा रहा है। उसने हाथों को बुलंद किया, कहा पाने वाले तुझे मेरे मौला मेरे आका का वास्ता बारिश कर दे। जैसे उसने जुमला कहा, बादल छाया, बारिश होने लगी, लोग मैदान से हटने लगे, वो भी गुलाम जाने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चला कि देखे ये कौन है, कहाँ से आया है। मगर वो बनी हाशिम के इलाके में चला गया, बनी हाशिम के मोहल्ले में गया, तो एक घर था जिसका दरवाजा खुला, वो घर में दाखिल हो गया, दरवाजा बंद हो गया। मैंने लोगों से पूछा ये किसका घर है। लोगों ने बताया कि अली इब्न हुसैन का घर है, यानी सैयद सज्जाद का घर है। वो कुछ देर के लिए वहीं पे ठहर गया, उसको कुछ बातें याद आ गई। शायद ये याद आया होगा कि ये उनका दरवाजा है कि जहाँ से जो मांगा जाए कभी रद्द नहीं होता। दरवाजे में जब कोई बात किया, एक सैयद सज्जाद का खादिम आया, पूछा क्या बात है। कहा यहाँ के मौला का जो मिलना है, वो ये देखना चाहता था कि इसका मौला वाका है कौन। कितनी तासीर की बारिश हो गई। एक बार उसने जब कहा, इमाम ने कहा उसे बुला लो। अंदर आया, इमाम सामने आए, कुछ बातें हुई। वो कहता है कि मुझे एक गुलाम चाहिए, मुझे एक गुलाम चाहिए। और वो ऐसे देख रहा था कि गुलामों जैसे उसकी शक्ल थी। इमाम ने अपने तमाम गुलाम को बुलाया और गुलाम सौदे लगा दिया। कहा ये सब गुलाम हैं, इसमें से देखो जो तुम्हें समझ में आए ले लो। एक एक का चेहरा देखने लगा। वो कहता है इसमें कोई ऐसा गुलाम नहीं कि जिसको हम ले जाएं। कहा क्या मतलब है। कहा हमें वो गुलाम चाहिए जो अभी दाखिल हुआ है। इमाम ने कहा वो मेरा खास गुलाम है। कहा हमें वही चाहिए, हमने सुना है जो आपसे मांगा जाता है आप दे देते हैं। पत्रकार आपने कहा फिर उस गुलाम को बुलाया जाए। उस गुलाम को बुलाया गया। कहता है बस मौला यही गुलाम चाहिए। पत्रकार को गुलाम आया और उसने उससे कहा तुमने मेरे बात को सुन लिया है,
जब मैं दुआ कर रहा था तो तुमने मेरी दुआ को सुन लिया। उसने इस्माइल इस गुलाम को तलब किया क्योंकि इसकी दुआ में असर बहुत थी। तो ये सोचे ये बहुत अच्छा इंसान है। करने बाद आका जैनुल आबिदीन ने कहा कि मैं तुम्हें इसे दे रहा हूँ, जाओ तुम इसके साथ चले जाओ, अब इसकी गुलामी करना। वो कहता है मौला अगर मेरे नसीब में आज के सिवा किसी और की गुलामी है तो मैं ऐसी गुलामी नहीं कबूल करूंगा, क्योंकि आपसे अच्छा कोई मौला नहीं और इस दर से अच्छा कोई दर नहीं। मौला ने बहुत ज्यादा इज़हार किया और उसने ले जाने की कोशिश किया, पर उसने हाथों उठाया, पालने वाले मुझे मौत दे दे और मैं इस मौला के सिवा किसी और की गुलामी नहीं करना चाहता। जिस मुझसे ऊपर आवाज हुई उसी वक्त उसका इंतकाल हुआ। मौला ने आंसू बहाया, वो इस मंजर को देख के चला गया। पता ये चला जो मौला के साथ रह जाए उसकी दुआ में ये तासीर, उस मौला की दुआ में क्या तासीर होगी। सवाल इमाम अलैहिस्सलाम ने हाथों को उठा के नमाज शब में दुआ मांगा, परवरदिगार मुझे एक नासिर और एक मददगार दे दे जो करबला में मीर हुसैन की नुसरत करे। एक दुआ शहजादी ने मांगा। जब ये कहा बाबा ये बताइए जब मेरा लाल हुसैन कई रोज का भूखा प्यासा करबला में ज़िबा हो जाएगा, न अली होंगे न आप होंगे न हसन रहेंगे न हम रहेंगे, तो मेरे लाल में कौन आंसू आएगा? तुम्हारा एक कौन खुदा पैदा करेगा जो तुम्हारे लाल में आंसू बहाएगा। पता ये चला एक अली ने भी तालीम की दुआ, एक फातिमा ज़हरा की दुआ। अली ने जो नासिर और मददगार मांगा वो हुसैन की जिंदगी से पहले का मांगा। परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो मेरे हुसैन की मदद करे। फातिमा ज़हरा ने जो दुआ मांगा, परवरदिगार फातिमा जब तक के जन्नत में न जाएगी तब तक के उससे होने वाले जन्नत में न चले जाएंगे। एक दुआ करबला में और हुई कि अब एक बार इमाम ने कहा एक इंसान लैला से कह दो अकबर के हक में दुआ करे। एक ऐसा रुस्तम आया जनबार जो खाना खा के आया है, पानी पी के आया है, मेरा आज कहे वो सब भूखा प्यासा है। बदनर माँ ने हाथों को उठाया, यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे। बदनर दुआ मांगी थी, बच्चा पलट के वापस आया, दोबारा मैदान में गए, मगर जब अली अकबर जा रहे थे एहसास हुआ पीछे कोई गिर गया। हुसैन के लाल ने पलट के देखा, पांव जमीन पे पांव को उठाया। बाबा इस तरीके से आप अगर आए थे आप कभी अंदर नहीं जा सकता। हुसैन ने अलविदा कहा, चल किया नेज़ा लगा। हुसैन पहुंचे, जवान के सीने से नेज़े को निकाला और जब अली अकबर जा रहे थे एक दुआ इमाम हुसैन ने किया, ए पाने वाले तू गवाह है ना, कई बार आपने सबसे अजीम चीज पेश करा हूँ जो मेरे नाना की छवि है। हुसैन जवान का लाशा लेके खाने के तरफ चले, जैसे ही बच्चों को पता चला अली अकबर का लाशा आया। हबीब इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने देखा एक बच्ची निकली, खाली पूजा लिए थी, उसने पूजा जमीन पे रखा, भाई के लाशे पे आई, ए बाबा क्या जालिमों ने मेरे भाई को कत्ल